Hello students, good morning. Welcome to SES online classes. Student, we were reading chapter 3, subject and predicate of our English language book Cornerstone. In our last video, our topic was subject and predicate. So student, we have read about subject and predicate in our last video and included this topic subject and predicate. We have read and solved exercise A and B, which is page number 8 of this chapter 3 in our English language book Cornerstone in our last video. And student, we have also read and solved exercise A of this chapter 3 in our FAT English language notebook in our last video. So student, we have completed exercise A and exercise B of this chapter 3 in our last video, and student, today's our topic is story. So students, today we will read a story, and included this topic story we will read first story, The Goose That Laid Golden Eggs, which is page number 9, and after student we will read a jungle story, which is page number 10. After student we will read and solve exercise B, which is page number 11 in our English language book Cornerstone, and last students we will read and solve exercise B of this chapter 3 in our FAIR English language notebook in our today's class. Okay, so all students please fast in your class and listen to my words clearly, because firstly we are going to read story The Goose That Laid Golden Eggs, okay, and solve exercise C. So all students look at the page number 9, okay, and let's see exercise C. Your exercise C is read this story. Read means पढ़िए, this means यह, story means कहानी, and means और, circle means circle करिए, this subject means कर्ताओं पे, okay, and means और, underline means रेखांकित करिए, the predicate means adjective विधेय विशेषण, okay. तो student, your exercise C is read this story and circle the subject and underline the predicate. It's mean कि इस स्टोरी को पढ़िए, इस कहानी को पढ़िए, और सब्जेक्ट में इट्स मीन कर्ता में सर्कल करिए, और प्रेडिकेट्स में इट्स मीन विधेय विशेषण में अंडरलाइन करिए, रेखांकित करिए उन्हें, ओके. तो स्टूडेंट, दिस स्टोरी इज बेस्ड ऑन द गोस दैट लेड गोल्डन एग्स, ओके. ये स्टोरी बेस है, एक गोस पे बेस है जो गोल्डन एग्स देती थी, ओके. द गूस इट्स मीन होता है कि बतख, ओके. द गूस दैट लेड गोल्डन एग्स मीन्स स्टूडेंट्स सोने के अंडे, ओके. द गूस दैट laid golden eggs, it means सोने के अंडे देने वाली बतख, okay. So let's read this story and complete this exercise C. Your story is a farmer bought a goose from a village fair, okay. A farmer means एक किसान, bought means खरीदा, a goose means एक बतख, from a village fair it's mean एक गांव के मेले से, okay. A farmer bought a goose from a village fair, it's mean एक किसान ने एक गांव के मेले से एक बतख खरीदा, ओके. एक बतख को खरीदा, ओके. तो अ फार्मर इट्स योर सब्जेक्ट, आपका सब्जेक्ट है, ओके. सो स्टूडेंट्स सर्कल अराउंड दिस वर्ड अ फार्मर, ओके. एंड बॉट अ गूस फ्रॉम अ विलेज फेयर, इट्स अ प्रेडिकेट, सो अंडरलाइन बिलो दीज वर्ड्स, बॉट अ गूस फ्रॉम अ विलेज फेयर, क्लियर. लेट्स सी नेक्स्ट लाइन. हिज वाइफ वाज हैप्पी टू हैव द गोस, ओके. हिज वाइफ मीन्स उसकी पत्नी, वाज मीन्स थी, हैप्पी मीन्स खुश, टू हैव दी गोस, ओके. उस गोस को, उस बतख को पाकर, हिज वाइफ वाज हैप्पी टू हैव दी गोस, इट्स मीन उसकी पत्नी बतख को पाकर खुश थी, ओके. सो से हिज वाइफ इट्स योर सब्जेक्ट, सो ऑल स्टूडेंट्स ड्रॉ सर्कल अराउंड वर्ड्स हिज वाइफ, ओके, एंड अंडरलाइन वर्ड्स वाज हैप्पी टू हैव दी गोस, ओके. तो वाज हैप्पी टू हैव दी गोस इट्स अ प्रेडिकेट, तो अंडरलाइन कर लीजिए इसको. लेट्स सी नेक्स्ट लाइन. दे कैप्ड द गोस इन देयर बॉर्न, ओके. दे मीन्स उन्होंने, कैप्ड मीन्स रखा, ओके. कैप्ड इज द सेकंड फॉर्म ऑफ कीप मीन्स रखना, कैप्ड मीन्स रखा, KEPT, कैप्ड मीन्स रखा, द गोस मीन्स बतख को, इन मीन्स मेड, देयर मीन्स अपने, बार्न BARN, हियर द मीन ऑफ बार्न मीन्स होता है स्टूडेंट खलियान या अनाज घर, ओके. BERN बार्न मीन्स होता है खलियान या अनाज घर, ओके. तो द कैप्ड द गोस इन देयर बॉर्न, इट्स मीन उन्होंने बतख को खलियान, इट्स मीन कि अनाज घर में रखा, उन्होंने बतख को अपने अनाज घर में रखा, ओके. द गूस लैड अ गोल्डन एग एवरी डे, ओके. तो जो बतख थी, ओके, बतख प्रत्येक दिन सोने का अंडा देती थी, वो, और जो गूस थी ना वो प्रत्येक दिन क्या करती थी, एक गोल्डन एग लैड करती थी, एक सोने का अंडे देती थी, ओके. तो सिन फर्स्टली सर्कल अराउंड दिस वर्ड डे, ओके. डे इट्स योर सब्जेक्ट, डे आपका सब्जेक्ट है, तो इस पर सर्कल कर लीजिए. एंड कैप द गूस इन डियर बॉर्न, इट्स योर प्रेडिकेट, ओके. सो अंडरलाइन दीज वर्ड्स, कैप द गूस इन डियर बॉर्न, ओके. द गूस लैड अ गोल्डन एग एवरी डे, ओके. इट्स मीन कि बतख प्रत्येक दिन या बतख प्रतिदिन एक सोने का अंडा देती थी. एवरी डे मीन्स होता है प्रतिदिन या प्रत्येक दिन, ओके. तो स्टूडेंट्स द गूस इट्स योर सब्जेक्ट, ओके. सो ऑल स्टूडेंट्स ड्रॉ सर्कल अराउंड वर्ड्स द गूस एंड लेड अ गोल्डन एग एवरी डे, इट्स अ प्रेडिकेट, सो अंडरलाइन इट, ओके. द फार्मर एंड हिज वाइफ वर वेरी हैप्पी, ओके. किसान और उसकी पत्नी बहुत खुश थे, ओके. तो द फार्मर एंड हिज वाइफ इट्स योर सब्जेक्ट एंड इट्स मोर देन वन वर्ड सब्जेक्ट, एक से अधिक शब्दों वाला सब्जेक्ट है, ओके. सो स्टूडेंट्स ड्रॉ सर्कल अराउंड दीज वर्ड्स, द फार्मर एंड हिज वाइफ, ओके. एंड वर वेरी हैप्पी, इट्स अ प्रेडिकेट, सो अंडरलाइन इट.
ईच डे द फार्मर सोल्ड द एग इन अ विलेज मार्केट. ओके, तो ईच डे इट्स मीन प्रत्येक दिन. दी फार्मर मीन्स किसान, सोल्ड मीन्स बेच देता था. सोल्ड इट्स द सेकंड फॉर्म ऑफ सेल. सेल मीन्स बेचना, सोल्ड मीन्स बेच देता था. दी एग मीन्स अंडे को. इन दी विलेज मार्केट इट्स मीन गाँव की बाजार में. ईच डे दी फार्मर सोल्ड दी एग इन द विलेज मार्केट. इट्स मीन प्रत्येक दिन किसान गाँव की बाजार में अंडे को बेच देता था. ओके, तो स्टूडेंट्स ईच डे इट्स अ प्रेडिकेट, सो अंडरलाइन इट. द फार्मर इट्स योर सब्जेक्ट, सो ड्रॉ सर्कल अराउंड दिस वर्ड द फार्मर एंड underline these words. Sold the egg in the village market. Clear? The farmer and his wife soon became rich. Okay, तो इट्स मीन कि किसान और उसकी पत्नी जल्दी ही अमीर बन गए. क्लियर? अब स्टूडेंट ऐसा पर्सन जिसके पास डेली 1 गोल्डन एग उसे मिले. ओके, 1 गोल्डन एग उसे अचीव हो जाए, मिल जाए, एक सोने का अंडा उसे किसी भी पर्सन को अगर डेली मिलेगा तो वो रिच तो बन ही जाएगा ना. तो जो किसान थे और उसकी वाइफ थी वो जल्दी अमीर बन गए. ओके, तो स्टूडेंट्स द फार्मर एंड हिज वाइफ इट्स अ सब्जेक्ट. ओके, इट्स अ मोर देन वन सब्जेक्ट. सो स्टूडेंट्स ड्रॉ सर्कल अराउंड दिस वर्ड द फार्मर एंड हिज वाइफ. ओके, एंड सून बिकेम रिच इट्स योर प्रेडिकेट. सो अंडरलाइन दिस वर्ड्स. द फार्मर्स वाइफ बिकेम ग्रेडी. ओके, किसान की पत्नी, किसान की जो वाइफ थी, ओके, किसान की जो पत्नी थी वो ग्रेडी हो गई. इट्स मीन लालची हो गई. ग्रेडी मीन्स लालची, बिकेम मीन्स हो गई, बन गई. ओके, अब जो किसान की वाइफ थी ना वो ग्रेडी हो गई, लालची हो गई, उसे लालच आ गया. तो स्टूडेंट द फार्मर्स वाइफ इट्स योर सब्जेक्ट. ओके, सो स्टूडेंट ड्रॉ सर्कल अराउंड वर्ड्स द फार्मर्स वाइफ एंड अंडरलाइन दिस वर्ड्स बिकेम ग्रेडी. ओके, सी वांटेड टू गेट ऑल द एग्स एट वंस. ओके, वह एक बार में सारे एग पाना चाहती थी. वो चाहती थी कि उसने सोचा ये जो गूस है, जो बता के वो डेली 1 एग देती है, गोल्डन एग देती है डेली, तो ऐसा करे कि ऐसा कुछ क्यों नहीं करते कि सारे एग्स एक साथ मिल जाए, है ना. डेली 1 एग चाहते हैं सोल्ड करने के लिए, बेचने के लिए, तो सारे एक साथ बेच देंगे, सारा पैसे एक साथ आ जाएगा ना. तो वो ग्रेडी हो गई. और ओके, तो सी वांटेड टू गेट ऑल दी एग्स एट वंस. वो एक ही बार में सारे वो गोल्डन एग्स को चाहती थी. ओके, सारे सोने के अंडे एक ही बार में चाहती थी. तो सी इट्स योर सब्जेक्ट. सो स्टूडेंट ड्रॉ सर्कल अराउंड दिस वर्ड. सी इट्स योर सब्जेक्ट एंड वांटेड टू गेट ऑल दी एग्स एट वंस इट्स योर प्रेडिकेट. सो अंडरलाइन दीज वर्ड्स. द फार्मर लाइक्ड हर आइडिया. किसान को उसका विचार पसंद आए. ओके, तो द फार्मर इट्स योर subject. So student draw circle around words the farmer and liked her idea, it's so predicate, so underline it. The farmer and his wife killed the goose. Okay, तो किसान और उसकी पत्नी ने गूस को, इट्स मीन बतख को मार डाला. ओके, किल एट द सेकंड फॉर्म ऑफ किल. किल मीन्स मारना, किल मीन्स मार दिया. क्लियर? तो दी फार्मर एंड हिज वाइफ इट्स योर सब्जेक्ट. इट्स अ मोर देन वन सब्जेक्ट. सो स्टूडेंट्स ड्रॉ सर्कल अराउंड दिस वर्ड्स द फार्मर एंड हिज वाइफ किल द गूस. इट्स योर predicate. क्लियर? सो अंडरलाइन इट. दे फाउंड नथिंग इन साइड द गूस. इट्स मीन कि उन्हें बतख के अंदर से कुछ भी नहीं मिला. ओके, तो दे इट्स योर सब्जेक्ट. So student draw circle around this word they and underline these words. Found nothing inside the goose. Clear? So students, we have completed this exercise C. Okay, we have read this story and I hope you must have understood this story. Okay, and students, this story gives us a moral that we should not be कम ग्रेडी. ओके, इट्स मीन कि हमें लालची नहीं बनना चाहिए. वी शुड नॉट बिकम ग्रेडी. हमें लालची नहीं बनना चाहिए, हमें लालच नहीं करनी चाहिए. ओके, अब 1 गोल्डन एग डेली मिलता था, उसी में सेटिस्फाइड हो जाती और उस डक को ना मारती, उस घूस को ना मारती. तो एक तो उन लोग ने उस घूस को मार दिया और उनके हाथ में भी कुछ नहीं लगा, है ना. जो 1 एग डेली मिलता था वो भी उनके हाथ से चला गया. तो हमें लालच नहीं करना चाहिए, लालची नहीं बनना चाहिए. क्लियर? वी कैन सी दिस पिक्चर दैट here's a goose. Okay, ये goose है और ये golden eggs देती है. क्लियर? एंड ही इज़ अ फार्मर एंड हिज वाइफ. ये फार्मर है, उसकी वाइफ है. क्लियर? सो स्टूडेंट्स, लेट्स सी रिकेप. अ सेंटेंस कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. ओके, एक वाक्य 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है, कर्ता और विधेय में. द सब्जेक्ट पार्ट टेल्स हु और व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट. ओके, जो सब्जेक्ट पार्ट होता है इट्स मीन कि कर्ता भाग बताता है कि वाक्य किसके बारे में है या क्या है. प्रेडिकेट पार्ट टेल्स व्हाट द सब्जेक्ट डज और इट्स मीन कि विधेय भाग बताते हैं कि कर्ता क्या करता है या क्या है. क्लियर? सो स्टूडेंट्स, टर्न योर पेज फॉरवर्ड एंड लुक एट द पेज नंबर 10. नाउ वी आर गोइंग टू रीड अ स्टोरी, अ जंगल स्टोरी. ओके, एक जंगल की कहानी. ओके, रीड द स्टोरी फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश एंड आंसर द क्वेश्चन. क्या करना है? अरुणाचल प्रदेश की स्टोरी को पढ़ना है, कहानी को पढ़ना है और क्वेश्चन के आंसर देना है. सो लेट्स रीड द फर्स्ट स्टेंट ऑफ द स्टोरी. There is an ancient jungle story about the owl and the tiger. Okay, ये एक प्राचीन जंगल की कहानी है, एक ऑल, एक टाइगर के बारे में. ओके, एक उल्लू और एक चीता के बारे में एक पुरानी कहानी है. ओके,
एट द बिगिनिंग ऑफ टाइम। ओके, तो समय की शुरुआत में दी ऑल डिड नॉट हैव अ फ्लैट फेस। ओके, उल्लू का फ्लैट फेस नहीं था। ओके, इट्स मीन उस उल्लू के पास समतल चेहरा नहीं था। ओके, उल्लू का जो फेस होता है ऑल का वो फ्लैट होता है ना। एंड द टाइगर हैड अ शाइनी कोट ऑफ प्योर गोल्ड। ओके, और जो टाइगर था उसके पास एक प्योर गोल्ड का शाइनी कोट था। ओके, इट्स मीन शुद्ध सोने का एक चमकता हुआ कोट था उसके पास। वन डे ऑल द बर्ड्स एंड द एनिमल्स ऑफ द फर्स्ट हेल्ड अ मीटिंग। ओके, एक दिन सारे पक्षियों और जानवरों ने जंगल के सारे पक्षियों और जानवरों ने एक मीटिंग रखी। ओके, एक मीटिंग रखी एंड चूज द टाइगर एज द किंग ऑफ द जंगल। और टाइगर को इट्स मीन चीते को क्या किया, जंगल के राजे के रूप में चुना। ओके, दे आल्सो डिसाइडेड दैट द ऑल शुड बी हिज मिनिस्टर। और उन्होंने ये भी निश्चय किया कि ऑल को मिनिस्टर होना चाहिए। ओके, उल्लू को मंत्री होना चाहिए। ओके, लेट्स सी सेकंड नंबर स्टैंजा। एट फर्स्ट ऑल वाज वेल। ओके, तो सबसे पहले तो सब कुछ अच्छा चल रहा था। जंगल वाज रूल विथ केयर। ओके, जंगल के सारे रूल बहुत ही केयर के साथ हो रहे थे। इट्स मीन उस पर सभी लोग मतलब सभी का शासन बहुत ही अच्छे से था। ओके, अब सभी रूल बहुत अच्छे से। एंड देयर वाज पीस एंड हैप्पीनेस, और वहाँ पे पीस और हैप्पीनेस थी, खुशी और शांति थी एवरीवेयर मीन्स प्रत्येक जगह। बट दैन द टाइगर एंड द ऑल स्टार्टेड शोइंग दियर ट्रू कलर्स। लेकिन फिर क्या होता है कि जो टाइगर और ऑल होता है उसने अपने असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। ओके, ट्रू कलर्स इट मीन असली रंग। ओके, द टाइगर वाज रेस एंड रफ। ओके, जो टाइगर था वो रस करने लगा। रस मीन स्टूडेंट द मीन ऑफ रस दैट उतावला होना। ओके, बिना थॉट किए वर्क करना, तो वो रेस करने लगा। ओके, वो बिना सोचे समझे हर वर्क करने लगा, हर काम करने लगा और रफ हो गया। ओके, और बहुत ही बैड बिहेव करने लगा सबके साथ। ओके, हियर द मीन ऑफ रस दैट टेंडिंग टू एक्ट इन अ हरी विदाउट एनी थॉट। ओके, इट्स मीन बिना किसी विचार के जल्दबाजी में कार्य करने की प्रवृत्ति को बोलते हैं रस करना। इफ़ ही डिसएग्रीड विथ एनीवन ही वुड यूज हिज स्ट्रेंथ टू विन दी आर्गुमेंट। ओके, आर्गुमेंट, तो अगर वो किसी से डिसएग्री होता था, असहमत होता था, तो वो क्या करता था, अपनी स्ट्रेंथ अपनी पावर का यूज़ करता था। ओके, उस आर्गुमेंट को जीतने के लिए। ओके, तो स्टूडेंट्स एंड आल्दो द ऑल वाज वाइज। ओके, और यद्यपि जो ऑल था, उल्लू था, वो बुद्धिमान था। ही वाज आल्सो प्राउड। ओके, से घमंड भी था, अभिमान भी था। एंड थॉट दैट ही वाज बेटर देन ऑल दी अदर बर्ड्स। और वह क्या सोचता था कि वह दूसरे बर्ड से, दूसरे पक्षियों से बहुत ज़्यादा अच्छा है, बेटर है। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट स्टैंजा। देन वन डे द आउल एंड द टाइगर हैड एन आर्गुमेंट अबाउट हु वाज विजर। ओके, अब एक दिन क्या होता है कि जो ऑल था और टाइगर था उन पे एक आर्गुमेंट हो जाता है, इस बारे में उन पे बहस हो जाती है कि बुद्धिमान कौन है। ओके, आर्गुमेंट मीन्स बहस हो जाती है। अभी उल्लू और चीते के बीच में इस बात को लेकर बहस हो जाती है कि उनमें से कौन सबसे ज़्यादा बुद्धिमान है। सून इट टर्न इनटू अ क्वेरल एंड द टाइगर लॉस्ट हर टेम्पर। तो ये जो आर्गुमेंट था, ये जो बहस चल रही थी, ये क्वेरल लड़ाई में, झगड़े में बदल जाती है। और कि फिर क्या होता है, जो टाइगर होता है उसने अपने टेम्पर को लॉस्ट कर दिया। ओके, हियर द मीन ऑफ लॉस्ट हिज टेम्पर। लॉस्ट हिज टेम्पर मीन्स स्टैंड होता है बिकम एंग्री, गुस्सा हो जाना। ओके, अपना आपा खो देना। ही स्लैप्ड द आउल सो हार्ड दैट द आउल फेस बिकम फ्लैट। ओके, उसने क्या किया, ऑल को एक बहुत तेज से थप्पड़ मार दिया। स्लैप मीन्स थप्पड़ मार दिया। और जो ऑल का फेस होता है ना, उल्लू का फेस था, वो फ्लैट हो गया, समतल हो गया। द एंग्री बर्ड पिक्ड अप अ बड़ी log and struck the tiger with it, leaving long black stripes on its body. अब जो एंग्री बर्ड है, ऑल है, ओके, इसे भी बहुत तेज गुस्सा आता है। जब टाइगर ने ऑल के फेस पे एक बहुत तेज स्लैप कर दिया, बहुत तेज थप्पड़ मार दिया, तो ऑल को भी गुस्सा है। उसने क्या किया, उसने एक बर्निंग लॉग, इट्स मीन एक जलता हुआ लकड़ी का टुकड़ा उठाया एंड स्ट्रक द टाइगर विथ इट। ओके, और टाइगर की बॉडी पे उसने मारा, तो लीविंग लॉन्ग ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन इट्स बॉडी। तो टाइगर की बॉडी पे क्या हो गया, ब्लैक स्ट्रिप्स पड़ गए। Seeing their king and his minister in such a state, the animals and birds held another meeting. जब एनिमल्स ने देखा कि जो फॉरेस्ट के किंग और मिनिस्टर हैं, इट्स मीन जंगल के राजा मंत्री है, वो ऐसा बिहेव कर रहे हैं, ऐसे लड़ाई कर रहे हैं, तो उन्होंने क्या कि एक दूसरी मीटिंग रखी। दे डिसाइडेड दैट द लॉयन वुड बी अ बेटर किंग ऑफ द जंगल। तो फिर उन्होंने डिसाइड किया, उन्होंने निश्चय किया कि शेर जंगल का राजा होना चाहिए। ओके, शेर जंगल का राजा अच्छा है, इन लोगों से अच्छा राजा कौन है, शेर है। असेम्ड ऑफ देमसेल्फ। ओके, तो जो ऑल थे, टाइगर थे, उनको वो खुद पर शर्मिंदा हुए। ओके, हियर द मीन ऑफ असेम्ड। असेम्ड मीन्स स्टूडेंट्स होता है फीलिंग सेम एट वंस फुली। इट्स मीन किसी की मूर्खता पर शर्म महसूस करना। ओके, किसी की मूर्खता पर शर्म महसूस करना, उसे बोलते हैं असेम्ड। द ऑल एंड द टाइगर क्रेप्ट अवे एंड डिसाइडेड
टू हाइड ड्यूरिंग द डे। तो जो आउल और टाइगर थे वो वहाँ से क्रैप्ट हो गए और उन्होंने डिसाइड किया कि वो दिन में नहीं आएंगे, वो नाइट टाइम ही बाहर आएंगे। ओके, सिर्फ एक बार नाइट टाइम को ही बाहर आएंगे। सिंस दैट डे, उस दिन से, ऑल्स हैव फ्लैट फेसेस, इट्स मीन उल्लू के फ्लैट फेसेस होते हैं, समतल चेहरे होते हैं। एंड टाइगर्स हैव ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन देयर बॉडीज, और जो टाइगर्स होते हैं, जो चीते होते हैं, उनकी बॉडी पे ब्लैक स्ट्रिप्स होते हैं। वी कैन सी इन दिस पिक्चर्स दैट टाइगर्स हैव ब्लैक स्ट्रिप्स। ओके, कि जो टाइगर्स है इसकी बॉडी पर ब्लैक स्ट्रिप्स हैं। ओके, ब्लैक धारियाँ है ना, काली कलर की धारियाँ। ओके, सो स्टूडेंट वी हैव read this story, a jungle story which is based on a owl and a tiger, and I hope you must have understood this story. Now we are going to solve exercise B. So all students look at this page number 11. Okay, let's exercise B. Or exercise B is match these words oblique groups of words from the story or to their meanings, then use them to make meaningful sentences of your own. It's mean क्या करना है आपको, ये जो शब्द हैं या शब्दों के जो समूह है, इन्हें इनकी स्टोरी से लिए गए शब्द या शब्द के समूह को उनकी मीनिंग से मिलाना है। ओके, अब जो एनसाइंट है, शोइंग देयर ट्रू कलर्स, रेस, प्राउड, लॉस्ट, स्टैम्पर्स, स्टोरी से लिए गए जो वर्ड्स है ना, स्टोरी से लिए गए इन वर्ड्स को, इन शब्दों के समूह को इनकी मीनिंग से मैच करना है और फिर इन वर्ड्स का यूज़ करके हमें एक मीनिंगफुल सेंटेंस मेक करना है। ओके, फिर उनका उपयोग करके अपने स्वयं के सार्थक वाक्य बनाने। ओके, फिर उनका उपयोग अपने स्वयं के सार्थक वाक्य बनाने के लिए करें। मीनिंगफुल सेंटेंस इट्स मीन सार्थक वाक्य। ओके, सो लेट्स सी फर्स्ट नंबर सेंटेंस विच वी आर टेकिंग फ्रॉम स्टोरी, जो हम स्टोरी से ले रहे हैं। योर फर्स्ट नंबर वर्ड इज एनसाइंट। एनसाइंट मीन्स फ्रेंड्स प्राचीन। ओके, सो द करेक्ट मीनिंग ऑफ दिस वर्ड एनसाइंट इज ऑफ अ टाइम लॉन्ग पास्ट। ओके, इट्स मीन बहुत पहले के समय का। सो स्टूडेंट मैच फर्स्ट एनसाइंट टू बी नंबर मीनिंग ऑफ अ टाइम लॉन्ग पास्ट। ओके, सो मैच करिए फर्स्ट एनसाइंट को बी मीनिंग ऑफ अ लाइन ऑफ अ टाइम लॉन्ग पास्ट से। ओके, एंड स्टूडेंट्स आफ्टर इट राइट डाउन दिस राइट डाउन। सो स्टूडेंट्स नाउ वी आर गोइंग टू मेक अ सेंटेंस ऑफ दिस वर्ड एनसाइंट। ओके, इस एनसाइंट वर्ड का हम एक मीनिंग बनाने जा रहे हैं। ओके, एक मीनिंगफुल सेंटेंस क्रिएट करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट एनसाइंट का मीनिंग क्या होता है? ऑफ अ टाइम लॉन्ग पास्ट, इट्स मीन बहुत पहले के समय का। एनसाइंट मीन हो गया प्राचीन। ओके, सो लेट्स सी सेंटेंस विच वी आर मेकिंग with this word ensign. Okay, your word is ensign. It's ensign means प्राचीन and the meaning of ensign is of a time long past. It's mean बहुत पहले के समय का। And the sentence with this word ensign is I like learning ancient language. It's mean मैं प्राचीन भाषाएं याद करना पसंद करती हूँ। ओके, मैं प्राचीन भाषाएं याद करना पसंद करती हूँ। एनसाइंट मीन्स होता है प्राचीन, पुरानी। ओके, तो मुझे प्राचीन भाषाएं सीखना पसंद है। ओके, लर्निंग मीन्स होता है याद करना या पसंद, तो मुझे प्राचीन भाषाएं सीखना पसंद है। क्लियर? लेट्स सी सेकंड नंबर वर्ड। योर सेकंड नंबर वर्ड इज शोइंग दियर ट्रू कलर्स। इट्स मीन हियर द मीनिंग ऑफ शोइंग दियर ट्रू कलर्स, इट्स मीन होता है स्टूडेंट्स अपना असली रंग दिखाना। ओके, सो स्टूडेंट द मीनिंग ऑफ दिस सेकंड नंबर वर्ड शोइंग दियर ट्रू कलर्स इज रिवीलिंग व्हाट दे रियली आर। ओके, रिवीलिंग व्हाट दे रियली आर। ओके, इट्स मीन कि हियर द मीन ऑफ रिवीलिंग व्हाट दे रियली आर, इट्स मीन कि प्रकट करना कि वास्तव में वो क्या है। ओके, अपना असली रंग दिखाना कि वो वास्तव में क्या है। ओके, सो स्टूडेंट मैथ सेकेंड नंबर शोइंग दियर ट्रू कलर्स टू डी नंबर मीनिंग रिवीलिंग व्हाट दे रियली आर, प्रकट करते हुए कि वे वास्तव में क्या है। ओके, स्टूडेंट्स नाउ वी आर गोइंग टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस विद दिस वर्ड with this word showing their true color. Okay, your sentence is she shows her true colors soon after Dee throws him out. Okay, it's mean कि उसने अपना ट्रू कलर दिखाया, उसने अपना असली रंग दिखाया। ओके, तो वह जल्दी अपना असली रंग दिखाती है और उसे बाहर फेंक देती है। थ्रोस मीन्स फेंक देती है, हिम मीन्स उसे। ओके, वह जल्दी अपना असली रंग दिखाती है और उसे बाहर फेंक देती है। क्लियर? इसमें लेट्स सी थर्ड नंबर वर्ड। थर्ड नंबर वर्ड इज रेस, RESS। हियर द मीनिंग ऑफ रेस, रेस मीन्स स्टूडेंट्स होता है उतावला। ओके, जल्दबाज। Okay, and the meaning of rest is tending to act in a hurry without any thought. It's mean कि बिना किसी विचार के जल्दबाजी में कार्य करने की प्रवृत्ति को बोलते हैं रस। क्लियर? तो इसे मैच 3 नंबर वर्ड रेस्ट टू E नंबर मीनिंग tending to act in a hurry without any thought. क्लियर? मैच करिए थर्ड टू E से। and students now we are going to make a meaningful sentence with this word rest. And student your sentence is the tiger was rest. It mean चीता उतावला था, चीता जल्दबाज था, वो कोई भी वर्क करता था तो वो बिना थॉट के करता था, बिना सोचे समझे करता था। रेस्ट मीन्स उतावला, जल्दबाज। ओके, तो स्टूडेंट लेट्स सी फोर नंबर वर्ड। योर फोर नंबर वर्ड इज प्राउड। हियर द मीनिंग ऑफ प्राउड, प्राउड मीन्स स्टूडेंट्स होता है गर्व या अभिमान। ओके, सो स्टूडेंट द मीनिंग ऑफ प्राउड इज फीलिंग वेरी सेटिस्फाइड विथ वन सेल्फ। इट्स मीन अपने आप से बहुत संतुष्ट महसूस करना। क्लियर? सो स्टूडेंट मैच 4 नंबर वर्ड प्राउड टू A नंबर मीनिंग फीलिंग वेरी सेटिस्फाइड विथ वन सेल्फ। ओके, मैच करिए 4 नंबर वर्ड को A नंबर मीनिंग से। ओके, एंड देन योर सेंटेंस बिकम
this made him very proud of his. Okay, it's mean this made him very proud means गर्व या अभिमान. Okay, of his it's mean कि इससे उन्हें अपने कौशल पर बहुत गर्व हुआ. स्किल मीन्स कौशल. ओके, तो योग्यता, तो इससे उन्हें अपने कौशल पर बहुत गर्व हुआ. क्लियर? दिस मेड हिम वेरी प्राउड ऑफ हिज, तो इससे उन्हें अपने कौशल पर बहुत गर्व हुआ. सो लेट्स सी स्टूडेंट्स नेक्स्ट. योर नेक्स्ट वर्ड इज फिफ्थ नंबर, लॉस्ट हिज टेम्पर. इट्स मीन अपना आपा खो दिया. क्लियर? सो स्टूडेंट द मीनिंग ऑफ दिस 5 नंबर वर्ड लॉस्ट हिज टेम्पर इज बिकम एंग्री. इट्स मीन कि बिकम एंग्री इट्स मीन गुस्सा आया. ओके, सो स्टूडेंट्स मैच 5 नंबर वर्ड टू F नंबर मीनिंग बिकम angry. Okay, and then your sentence become don't lose your temper and rise your voice in public. Okay, don't lose your temper, अपना आपा मत खोइए, and rise your voice in public. It's mean rise your voice in public it's mean हो गया कि सार्वजनिक रूप से अपनी आवाज़ उठाएं. ओके, अपना आपा मत खोएं और सार्वजनिक रूप से पब्लिक में अपनी आवाज़ उठाएं. ओके, सो स्टूडेंट लेट्स सी 6 नंबर वर्ड विच इज़ लास्ट वर्ड ऑफ दिस एक्सरसाइज बी. योर 6 नंबर वर्ड इज असेम्ड. असेम्ड मीन्स शर्मिंदा हुई. ओके, शर्मिंदा हुई. ओके, या लज्जित होना, शर्मिंदा होना. एंड स्टूडेंट द मीनिंग ऑफ असेम्ड इज फीलिंग सेम एट वंस फुलीनेस. इट्स मीन किसी की मूर्खता पर शर्म महसूस करना. ओके, फुलीनेस इट्स मीन्स मूर्खता पर. सो स्टूडेंट मैच 6 नंबर वर्ड असेम्ड टू C number meaning feeling same at once foolishness. Clear? And students write down a meaningful sentence, and your meaningful sentence is you should be ashamed on yourself. Okay, it's mean कि आपको स्वयं पर शर्म करनी चाहिए. Clear? So students, we have solved this exercise B, and I hope you must have understood this exercise B. You have no problem in this exercise B. Okay, so students, today's your classwork is that complete exercise C, which is page number 9 in your English language book cornerstone, and after student complete exercise B, which is page number 11 of this chapter in your English language book cornerstone, and after student complete exercise B of this chapter in your fair English language notebook. It's a 2 days classwork. Okay, आज आपका classwork है कि आपको exercise C, exercise B अपनी बुक पे कंप्लीट करनी है, एंड एक्सरसाइज बी आपको अपनी इंग्लिश लैंग्वेज की फैन नोटबुक पे नोट डाउन करनी है. क्लियर? इट्स अ टुडेज क्लास वर्क. आज आपका क्लास वर्क है, एंड इससे होमवर्क इज दैट लर्न एक्सरसाइज बी एंड एक्सरसाइज सी ऑफ दिस चैप्टर 3 फ्रॉम योर इंग्लिश लैंग्वेज बुक. इट्स अ 2 days होमवर्क. आपका होमवर्क है कि आपको एक्सरसाइज सी और एक्सरसाइज ए अपनी बुक से लर्न करनी है. क्लियर? सो ऑल स्टूडेंट फर्स्टली कंप्लीट योर क्लास वर्क, कंप्लीट एक्सरसाइज सी विच पेज नंबर 9, एंड आफ्टर स्टूडेंट कंप्लीट एक्सरसाइज बी विच पेज नंबर 11 in your English language book, and after student complete exercise B of this chapter in your fair English language notebook, and send me your work here. Thank you.